ماضی میں کیا ماضی میں کیا جیسے 3 دن چھت پہ بیٹھے وہ شادی شدہ کمرہ وہی جو شادی شدہ نہیں ہے وہ شادی شدہ نہیں ہے ہماری زندگی دے رہا ہے اب یہ ایسی جگہ ہے نا ہم نے گاڑی تو نہیں ہے بس ویسے ہم رہائش بھی رکھتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اچھا وہی بائیں ہیں وہی بینک سے آپ دیکھ سکتی ہیں تقسیم وہاں سے وہاں پہ زہریلے جانور بھی ہیں حالات سارے جانا پڑتا ہے رات کو بھروسہ ہے ان کی رات کو بھروسہ ہے. تو ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا اور سنا کہ عبدالسمیع بھائی نے ہمیں بتایا کہ جب سیلاب آیا تو 3 دن انہوں نے بچوں سمیت بھوک پیاس کاٹتے ہوئے اس چھت پہ گزارے. 3 دن کے بعد امدادی ٹیم آئی اور انہوں نے کشتی پہ انہیں کسی خوش مقام پہ منتقل کیا. مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ یہ اپنے دل کی باتیں مجھے اپنا سمجھ کے میرے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. ایسے لگ رہا ہے کہ یہ ساری ہماری فیملی ہے بن جاتی 2 دن جو بات ہو جاتی ہے نا وہ فیملی بتائیں گے ان کو پتہ بھی بتائیں کہ یہ سکتا ہے جتنا سرکے نا منا سی جناب کون جو جناب من میرے ساتھ عبداللہ بھائی موجود ہیں اور وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ یہاں پہ کھانا پوری کرنے اور یہاں فارمیلٹیز پوری کرنے کے لیے آتے ہیں تو ہم ان سے بہت زیادہ عاجز آ چکے ہیں کیونکہ جب وہ آتے ہیں تو ہمیں یہ امید ہوتی ہے کہ وہ ہماری کوئی امداد کرنے آئے ہوں گے لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. اپنا فوٹو شوٹ کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. میرا کون سا کرے ہم انتظار میں یہ گورنمنٹ سیکٹر سے آتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر یہ بس اللہ جان. اچھا یہ گورنمنٹ انتشار سے گورنمنٹ سیکٹر سے پوری کر کے لکھائی کروانا ساتھ جاتے ہیں ان کو کسی کوئی بھی چیز کی صفائی نہ بالکل پیچھے میرا خیال ہے میرے بچے اور میرا فیملی میں یہ احسان اللہ بھائی میرے ساتھ ہیں. تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جانوروں کا ایک بارہ بنایا ہے انہوں نے اور اسی بارے کے ساتھ ان کی رہائش ہے ان کی فیملی اور یہ یہیں پہ سوتے ہیں. تو ہمیں بتائیں گے ہم ان سے جانیں گے کہ کسی کو تازہ ترین صورتحال کرائے قابل کے ساتھ متاثر علاقے میں کیا ہے. جی احسان بھائی بتائیں. میرا سی سوال ہے کہ ٹھنڈ بھی بڑی ہے کہنا چاہیے جنہیں لوگ آئی دہائی کر سکتی ہے کوئی نہیں آیا کیا ٹھیک ہے نہ کوئی آیا سیوا تھوڑے علاوہ تو ٹھنڈ بھی بڑی ہے تو جڑا تھی ہے بڑے مہربانی ہے اگر جڑا تھی سارے واسطے کرتے رہے صحیح ہے. اس کے علاوہ سارے فیملی ہے سارا چیز کر رہے سر راہ بھی سارا خراب ہے. بالکل میں نے دیکھا میرا مشکل مشکل سے آئے کسی بھی آئے تو جانے راستہ اور کوئی نہیں ہے. بالکل ایسے صحیح ہے. اس کے علاوہ ایسے کچھ نہیں کہہ سکتے جو لوگ امداد کریں وہ شکریہ سے ادا کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں بہت زیادہ اگر چیزوں کی ضرورت ہے اور ہمارے بچے بھی دیکھ لو ویسے سال ہو گئے وہی ابھی بعد میں تو ابھی نیوز بڑھ رہی ہے. بالکل بہت ہم ادھر جو ہے نا سردی جو ہے نا ہمارے بچے بھی بیمار ہو رہے ہیں مزدوری بھی نہیں ہے صحیح ہم بہت مشکل میں ابھی وہ خیمے میں رہے. آپ ہمارے دیکھنے سننے والوں سے ان کو کوئی میسیج دینا چاہیں گے یا کوئی ریکویسٹ کرنا چاہیں گے؟ ہم تو یہی کہیں گے آپ کی مہربانی ہوگی اگر ہمارے ساتھ کوئی تعاون کریں کیونکہ ہمارے پاس جو بھی آتا ہے ویسے بھی لکھ کر کچھ کر لیتا ہے پھر دوبارہ نہیں آتا. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ پہلے بھی آئے ہیں دوبارہ بھی آئیے اور آپ جب آتے ہیں تو ہمارا کوئی ہے نہیں ابھی بھی امید ہے آپ پھر ہمارے لیے امداد آپ کریں گے ان شاء اللہ. میں نے جب آپ بات میرے بات اچھا بات مجھے بہت شکریہ. جب آتے ہیں کیا آنکھوں میں اچھا خواب سے اگر تک کچھ نہیں آیا ہے اتنا امید تازہ ہو جاتا ہے ہے ہمیں پوچھنے والا ہے
इतनी ताज़ा हो जाता है। लेकिन का जो हमारी इतनी सख्ती है ना कि हम अपने कज़न को घर के अंदर नहीं आएंगे। तो आप उनके साथ हम इस तरह कर रहे हैं जिस तरह फैमिली आया खुद पूछने वाला आया है, पूछने वाला है, कज़न पूछने नहीं आता है। तो बहुत बड़ी मेहरबानी। बस ये हमारे हालात है, वैसे कुछ आवाम से ये मिन्नत करता हूँ, काम तो नहीं हमारे बच्चों का रहम करें, कोई गर्म किस तरह हो गए, कोई कंबल हो गए, कुछ चीज़ जो आपकी तौफीक हो गए हमें पहुँचा दो, हम दुआ करेंगे। तो नाजरीन, आपने देखा और सुना, सैलाब ज़दगान मुतासरीन की भी बातें सुनी, उनकी ख़वातीन की भी बातें सुनी कि जब सैलाब आया उस वक़्त क्या सूरत हाल थी, और उस एमरजेंसी से निमटने के बाद इस वक्त जबकि सख्त सर्दी है यहाँ पे पहाड़ी और दरियाई इलाके में, यहाँ पर इनके माल मवेशी, इनकी फैमिलीज़, इनके बच्चे, इनके ख़वातीन किस कदर कसम पुरसी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये हम आपको बिल्कुल ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट कर रहे हैं उन लोगों के लिए कि जिनकी शायद ये खाम ख्याली है कि सैलाब की एमरजेंसी गुजर जाने के बाद वहाँ ज़िंदगी बहाल हो चुकी है और वो लोग रिस्टोरेशन की तरफ जा रहे हैं, जबकि हालात जो हैं वो इसके बिल्कुल बरक्स हैं। आप देखें कि इनकी जो चारों दीवारें हैं वो भी ज़मीन बोस हो चुकी हैं और छतों का ऊपर नामो निशान तक नहीं बचा। पर्दों की और टेंट्स की दीवारें बनाकर ये लोग अपनी फैमिली को और अपनी ख़वातीन को और अपने बच्चों को महफूज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मेरे कैमरा मैन ये ज़रा नीचे दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि इनके जो फ़र्श की सूरत हाल ये है कि वो दलदल का समा दे रही है। आप जहाँ पाँव रखें सैलाब की तबाहकारियों की वजह से दस्ता चला जा रहा है। दो नई बातों का जो इंकशाफ हुआ वो इंतहाई गंभीर था। एक ये कि जहाँ इनके माल मवेशी बंधे हुए हैं वहीं पर ही इनके बच्चे, इनकी फैमिलीज़ और इनकी औरतें जो हैं वो गुजर बसर कर रही हैं और वहीं पे वो सो रहे हैं और शब रोज़ गुजार रहे हैं। और दूसरा ये कि जो NGOs, जो CBOs, जो इदारे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से हैं चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर से हैं, इन्होंने बताया कि वो लोग आते हैं यहाँ पर और जस्ट फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके और अपनी लिखत पढ़त करके तो वो चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो दोबारा पलट के नहीं आते। वल्लाहु आलम कि वो गवर्नमेंट सेक्टर से हैं या प्राइवेट सेक्टर से हैं, लेकिन वो यहाँ पर इनकी खाना पूरी करके तो चले जाते हैं और इनको किसी भी सहूलत से फैसिलिटेट नहीं करते और कि कोई भी ऐसी चीज़ मुहैया नहीं करते जिससे इनके लिए कुछ आसानियाँ पैदा हो सकें। तो आज इधर विज़िट करने से पहले मेरा ये ख्याल था कि शायद मैं दोबारा यहाँ ना आ सकूँ, क्योंकि हमारे जो डोनर्स हैं, हमारे जो मुग़य्यर हज़रात हैं, वो भी एक एक करके थोड़ा पीछे हटते जा रहे हैं, ये सोच कर कि अब सैलाब को गुज़रे हुए 2-4 माह हो गए हैं तो शायद वहाँ ज़िंदगी बहाल हो चुकी है और वहाँ मज़ीद अब चीज़ों की ज़रूरियत ज़िंदगी की या इनकी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। जबकि आपने देखा और सुना कि उन लोगों ने बताया कि हम हर माह आपकी राह तकते हैं, आपके मुंतज़िर होते हैं कि सोनिया नाज मुरट टीवी यहाँ पर आएंगे और हमारी कुछ ना कुछ हेल्प या सपोर्ट करके जाएंगे। वो कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा। तो इस बात ने मुझे भी बहुत शशोपंच में डाल दिया और मैं जो इरादा करके आई थी कि शायद मैं दोबारा यहाँ पर ना आ सकूँ, लेकिन मैं अपना इरादा आज मुलतवी कर रही हूँ। वो इसलिए कि हमारे बहन भाइयों को इस वक्त हमारी अशद ज़रूरत है और यही मुरट टीवी का विजन है, यही मुरट टीवी का विशन है कि अपने आस पड़ोस जनरल पब्लिक, अपनी ट्रांस कम्युनिटी में जो जेन्युइन, नीडी और डिज़र्विंग लोग हैं उनकी मदद करना, उनकी सपोर्ट के लिए पहुंचना। और मेरे ख्याल में सैलाब ज़दगान से ज़्यादा जेन्युइन, नीडी और डिज़र्विंग कोई नहीं। ये मुझे विज़िट करवा रहे हैं अपनी फसलों का जो कि तबाह हो चुकी हैं और बिल्कुल ही इस काबिल नहीं रही कि यहाँ कोई खेती बाड़ी की जा सके या सब्ज़ी अनाज बोया जा सके। इंतहाई दुश्वार गुज़ार और तवील सफ़र करने के बाद हम उन तक पहुँचे और खुशी इस बात की थी कि वो मुरट टीवी की टीम को अपने बहन भाइयों के साथ तशबीह दे रहे थे। हमारी इमदादी टीम को देख के ऐसा कि जैसे उन्हें कोई उम्मीद की किरण नज़र आ गई और उन्होंने हमारे साथ अपने बहुत सारे मसाइल शेयर किए। हमें वो घर दिखाए, हमें वो कमरे दिखाए जो कि सैलाब की तबाहकारियों की वजह से ज़मीन बोस हो चुके थे। इंतहाई बेबस थे और अफसरदा थे कि हम उनकी उम्मीदों पे मुकम्मल तौर पर पूरा नहीं उतर सकते जैसा कि वो चाहते हैं।
लेकिन मैं इरादा करती हूँ कि जब तक इन लोगों की रिहेबिलिटेशन नहीं हो जाती और मुकम्मल तौर पर रिकवरी नहीं हो जाती और अच्छे तरीके से यहाँ पे ज़िंदगी बहाल नहीं हो जाती, इंशाअल्लाह हम लोग यहाँ पे आते रहेंगे और जहाँ तक मुमकिन हो सका हम इनकी हेल्प और सपोर्ट करते रहेंगे। ये उसी सूरत में मुमकिन होगा जब आप लोग हमारा साथ देंगे, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मूरत टीवी ना कोई CPO है, ना कोई NGO है, ना कोई इदारा है। ये प्लेटफॉर्म सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के तावन से चल रहा है। आप लोग जितना ज़्यादा साथ देंगे हम उतना ही ज़्यादा सैलाब से मुतासरीन की मदद कर पाएंगे। तो इस नेक काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच आउट कर सकें, क्योंकि ये बहुत बड़ा सदका जारिया है जिसका अजर व सवाब आखिरत में तो मिलेगा ही मिलेगा, दुनिया में ही इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक हमें किसी न किसी अच्छी शक्ल में इसका नेमल बदल ज़रूर अता फरमाएंगे। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप खुद यहाँ पर आकर खुद से बनफ़्से नफीस इनकी मदद करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। हम आपके साथ इनके कॉन्टैक्ट्स शेयर करेंगे, हम आपके साथ इनके एड्रेस शेयर करेंगे। और अगर आप खुद से नहीं आ सकते तो आप हमारे मूरत टीवी के साइट पे आप इनके लिए साजो सामान, सर्दियों की मुनासबत से कंबल, रज़ाइयाँ, गर्म स्वेटर, जर्सी, गर्म बिस्तरे और गर्म कपड़े पहुंचा सकते हैं। हमेशा की तरह आपकी दी हुई चीज़ें ट्रांसपेरेंटली इन लोगों तक पहुंचाई जाएंगी। और अगर आप चैरिटी की शक्ल में डोनेशन सेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारा जैज़ कैश नंबर, ईज़ी पैसे नंबर और बैंक अकाउंट डिटेल शेयर की जा रही है, ताकि आपको इस नोबल और ग्रेट काज में कंट्रीब्यूशन करने में आसानी हो। तो उम्मीद है नाजरीन कि हमेशा की तरह आपको हमारा आज का प्रोग्राम, आज की ये खिदमत खलक भी अच्छी लगी होगी। हमें फ़ीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको सैलाब ज़दगान मुतासरीन की इमदाद का ये ख़ुसूसी प्रोग्राम कैसा लगा। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान सोनिया नाज को। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मूरत टीवी। फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह एक नई खिदमत खलक के साथ। अल्लाह ने के बाद। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा तो मूरत टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली एपिसोड फौरी मिल सके। मूरत शो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपको हमारे ट्रांसजेंडर्स का टैलेंट पसंद आया तो उनकी सपोर्ट और प्रमोशन के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अपनी मेज़बान सोनिया नाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।